ان کا جانا تو بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ وہ ذرا رہتے لو پروفائل ہے، اس لیے شاید آپ جانتے نہ ہو۔ ڈاکٹر عثمان خان کنسلٹنٹ سرجن ہے، جانے مانے یہاں یو کے پاکستانی ڈائسپورا کے ایک بہت مشہور جانے مانے جو ہے یہاں کے لیڈر ہیں، ڈاکٹر ہیں، اور عمران خان صاحب کے بچپن کے ساتھی اور کزن ہیں، لیکن اس کے اوپر ہم بعد میں آئیں گے، کیونکہ خاص طور پہ ہمارا موضوع گفتگو آج ڈاکٹر عثمان خان صاحب کو لے کر وہ سٹیزنز اگینسٹ اسٹیٹ ٹارچر کے یہ ڈائریکٹر ہیں، اور یہ اس وقت کاسٹ نام کی یہ تنظیم کھڑی کی گئی ہے جس وقت اوورسیز پاکستانیز کو ہر طرف سے خوفزدہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ڈومیسٹک پاکستانیوں کو خوفزدہ کر دیا گیا ہے۔ ان کی آواز حق کو اگر وہ خوفزدہ نہیں بھی ہیں تو مکمل طور کے اوپر دبا دیا گیا ہے، اور اس صورتحال میں آپ کو پتہ ہے کہ واضح طور کے اوپر ذمہ داری ساری کی ساری جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیز کے اوپر آئی، لیکن ان کے اوپر بھی اتنے شدید پریشرز ڈالے گئے پاکستان میں، ان کے رشتہ داروں کو تنگ کر کے، جس طرح میری والدہ کو اغوا کر دیا گیا۔ ڈاکٹر عثمان خان کی پوری فیملی اس وقت، خان صاحب سے ان کا دورہ تیرا رشتہ ہے، پوری فیملی زیر عتاب ہے اس وقت پاکستان کے اندر، ڈاکٹر عثمان کی بھی۔ تو اس کے باوجود بھی ڈاکٹر عثمان خان نے جرت کی عمران خان کی طرح آواز حق بلند کرنے کی، اور سٹیزنز اگینسٹ اسٹیٹ ٹارچر یہ تنظیم جو ہے جس کی ویب سائٹ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بنانے کی، اور یہ اس وقت لٹیگیشن کرنے جا رہے ہیں ہیومن رائٹس انٹرنیشنل فورمز کے اوپر پاکستان میں، اور جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں ان کو لے کر یو کے لیڈنگ ہیومن رائٹس بیرسٹرز اور لیگل ٹیمز جو ہیں وہ ان کو اٹھا کے انٹرنیشنل فورمز کے اوپر لے کے جا رہے ہیں۔ میں نے یہ آپ کو انٹروڈکشن دینا مناسب سمجھا، اور بعد میں اس گفتگو کو آگے بھی بڑھائیں گے، لیکن سب سے پہلے ہم ڈاکٹر عثمان خان کو خوش آمدید کہتے ہوئے ان کی اپنی زبانی سنیں گے، اور پہلا سوال بھی کریں گے کہ سر ایک تو اپنا تعارف جو ہے وہ پاکستانی عوام کو کرائیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے کہ جہاں لوگوں جو ہے لوگ خوف کی وجہ سے خاموش کر دیے گئے ہیں، پریشر کی وجہ سے خاموش کر دیے گئے ہیں، پریشرز آپ کے اوپر بھی ہیں لیکن پھر بھی آپ آواز حق بلند کر رہے ہیں پبلکلی، تو اس کی کیا وجہ ہے ہمیں بتائیے۔ ویلکم سر۔ السلام علیکم عادل، وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا اس پروگرام میں۔ دیکھیں، خاص صاحب کو ووٹ آف نو کانفیڈنس ان کے خلاف ہوا یا جو بھی آپ کہہ لیں، ایکچولی تھی تو وہ بہت بڑی سازش بین الاقوامی اور اپنے ملک والوں کی، چاہے ہم لوگ مانے نہ مانے، تو اس بات کو کوئی دیکھیں پچھلے اپریل میں ہوئی تھی، آج جولائی آ گئی ہے، تو کوئی 16 مہینے ہو گئے۔ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، ہم بیٹھے رہے سوچتے رہے کہ آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی، لیکن وہ نہیں ہوئی۔ ہم اوورسیز پاکستانی چاہے وہ یو کے میں ہیں یا سعودی عربیہ میں ہیں یا امریکہ میں ہیں، ہمیشہ اپنے ملک کی بہتری کے لیے، اپنے ملک کا نام بلند کرنے کے لیے کام کرتے رہے ہیں۔ لیکن پچھلے 1.5 سال میں جو ہم نے دیکھا کہ جو لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ہماری پیسفل پروٹیسٹ تھیں، جس طرح ان کو ڈیل کیا گیا، ہماری عورتوں کو زمین پہ گھسیٹا گیا، لوگوں کے گھر میں پولیس بغیر وارنٹ کے داخل ہوتی رہی، جو وکیل یا عام پبلک کوئی بھی خان صاحب کا نام لیتا تھا یا پی ٹی آئی کا نام لیتا تھا تو ان کو گرفتار کر کے بغیر کسی وجہ کے اندر ڈال دیا جاتا تھا۔ اور اس کے بعد خواجہ آصف صاحب جو ہمارے ڈیفنس منسٹر ہیں، انہوں نے جب پارلیمنٹ میں اوورسیز پاکستانیوں کو اس قسم کی دھمکی دی تو پھر آئی تھنک دیٹ واز دا لاسٹ اسٹرا۔ پھر ہم نے فیصلہ کیا، ڈاکٹرز نے، لائرز نے اور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ نے جو یہاں پر ہیں، ہمارا رابطہ اپنے امریکن بھائیوں کے ساتھ بھی ہے۔ ہم نے بائنڈز مین جو یو کے کی بہت فیمس ہیومن رائٹس کی لا فرم ہے، جنہوں نے پیلسٹینینز کے لیے بڑا کام کیا، یمن میں کام کیا، بوسنیا میں کام کیا، کشمیر میں بے تحاشا کام کیا ہے، تو ان کے لوگوں سے بات کی، وہ they also came forward۔ تو پھر ہم نے سوچا کہ ٹھیک ہے، اگر انہوں نے اسی طرح ظلم کرنا ہے اور بے گناہ لوگوں کو
तकलीफ देते रहना है, कत्ल कर देना है, सहाफ़ियों को कैद कर देना है, तो फिर हम भी ह्यूमन राइट्स जो यूनाइटेड नेशंस का डिपार्टमेंट है उनको हम रुजू कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इनके खिलाफ हम हेग में भी जाएंगे. ये लोग अब इंशाल्लाह ताला बच नहीं सकते. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग में आप कह रहे हैं उधर भी जाएंगे? जी बिल्कुल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. और ये आपने जो ह्यूमन राइट्स जो लीगल फर्म आपने हायर की है, ये जो आपने अपने साथ एसोसिएट कर रहे हैं, इसका सर दोबारा नाम बताइए डॉक्टर साहब. Bindmans, BINDMANS, Bindmans. इनके जो मैनेजिंग पार्टनर हैं वो ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं, और उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है ह्यूमन राइट्स के लिए सारी दुनिया में. तो उन्होंने अपनी सर्विसेज ऑफर की हैं, और उनके लिए हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं. बहुत उन्होंने हमारे साथ क्या कहना चाहिए कोऑपरेट किया बहुत ज़्यादा. ये हमें देखने में डॉक्टर साहब वाज़े तौर के ऊपर आया है कि जो यहाँ पे ब्रिटिश पाकिस्तानीज़ हैं जो बॉर्न एंड ब्रॉट अप यहीं पे हैं, जिनके वालदैन यहाँ माइग्रेट करके आए थे, वो पाकिस्तान से बड़ी शदीद मोहब्बत रखते हैं हर लम्हे के ऊपर. बिलखसूस सोलिसिटर्स, बैरिस्टर्स और हाई जो प्रोफेशनल्स आपकी तरह के हैं, डॉक्टर उस्मान खान आपकी तरह के मेडिकल प्रोफेशनल्स जो हैं, और हर लेवल के ऊपर जो प्रोफेशनल्स हैं वो ये काम कर रहे हैं और बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं. सर मैं इसीलिए अज़ीज़ान मन नीचे इस वक्त आपको वेबसाइट नज़र आ रही है citizensagainststatetorture.co.uk की, और इसी मकसद के तहत ये थोड़ी फंड रेजिंग कर रहे हैं, और इसमें मेजॉरिटी काम जो है वो प्रो बोनो मुफ्त में किया जा रहा है. सिर्फ रिसर्च के लिए ये फंड जमा कर रहे हैं. इन रिसर्च के फंड्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट है डॉक्टर उस्मान, अगर आप ये बताएं लोगों को, फिर हम आगे चलते हैं. सर देखिए जी, एक तो हमें एविडेंस चाहिए, रिटन एविडेंस, ओरल एविडेंस. जिन लोगों पे जुल्म हो रहा है, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो फॉरवर्ड आएं, हमें कांटेक्ट करें ताकि हम उनके बयान रिकॉर्ड कर सकें. अगर वो वीडियो प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो वो बताएं. अगर उनके साथ नहीं अभी हुआ और उनके हमसाए या उनके दोस्त या उनके रिश्तेदार या उनके जानने वाले जिनके साथ किसी भी किस्म का इस हुकूमत में, जिनको मैं तो हमेशा इम्पोर्टेड हुकूमत कहता हूँ, इनके दौर में किसी भी किस्म की जो ज्यादती हुई है, दे शुड कम फॉरवर्ड एंड टेल अस, ताकि हम वो रिकॉर्ड कर सकें. क्योंकि ये जो यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स की जो एप्लीकेशन है, ये बड़ी सिंपल एप्लीकेशन होती है, लेकिन इसके लिए हमें बड़ी डिटेल चाहिए होता है. तो हमारा जो एविडेंस होना चाहिए वो बिल्कुल सॉलिड होना चाहिए उसके लिए, और फिर जो यूनाइटेड नेशंस है वो फिर उस पर किसी भी किस्म का जो उन्होंने कदम उठाना है वो फिर उठाएंगे. तो उसके लिए ये डॉक्टर साहब जो बात करें, इसके लिए प्लीज ये ईमेल एड्रेस मैंने आपको वेबसाइट पे भी दिखाया, इस ईमेल एड्रेस को नोट कीजिए. आप citizensagainststatetorture@protonmail.com के ऊपर आप सिटीजन अगेंस्ट स्टेट टॉर्चर से राब्ता करके अपनी विटनेस स्टेटमेंट दे सकते हैं, अपनी गवाही दे सकते हैं. आप जो भी चीज देना चाहते हैं एविडेंस के अंदर वो दे सकते हैं, ताकि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल को भी वो प्रेजेंट की जाए, और उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग के अंदर भी आपकी विटनेस स्टेटमेंट की बेस के ऊपर जो है वो केसेस आगे लेके जाए जाएंगे. जिसके लिए नीचे ईमेल एड्रेस आपको नजर आ रहा है, ये ईमेल एड्रेस है, यही ईमेल एड्रेस. और इसके अलावा आप अगर विटनेस स्टेटमेंट नहीं देना चाहते तो मॉनेटरी सपोर्ट करना चाहते हैं, तो बड़ा बेसिक किस्म की रिक्वायरमेंट है मॉनेटरी सपोर्ट की, वो भी आप जाके सिटीजंस अगेंस्ट स्टेट टॉर्चर आपको नीचे नजर आ रही है, ये वेबसाइट नजर आ रही है, इसके ऊपर मैंने आपको लिंक भी दिखाया है, इसके ऊपर लाजमी जाइए, और इसके ऊपर डोनेट का बटन आपको ऊपर भी नजर आएगा, और नीचे भी आपको डोनेट बॉटम पे डोनेट का बटन नजर आ रहा है, ये देखिए, और उसके ऊपर आपको जो है वो नजर आ रही है इनके कांटेक्ट का ईमेल नजर आ रहा है, और ये ईमेल आपको मैंने यहाँ पे दिखाया भी है. सर आपको कितने इसके अंदर फंड्स कितने अंदाजन जो है वो रिक्वायर्ड है डॉक्टर उस्मान? लेट्स कट टू द चेज. जी हम हमारी कोशिश है कि
50,000 पाउंड रेज हो जाएंगी। इस वक्त हमने लॉ स्टूडेंट्स भी हायर किए हुए हैं जो रिसर्च कर रहे हैं। सारी बातें उनको भी हमें थोड़ा बहुत डेली देना पड़ता है। तो और इसके लिए हम मीडिया लॉ में भी लॉबी कर रहे हैं, पार्लियामेंट भी लॉबी कर रहे हैं, मेंबर्स ऑफ जो पार्लियामेंट है ब्रिटिश पार्लियामेंट उनको भी मिल रहे हैं। तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि आप 1 पाउंड, 5 पाउंड, 10 पाउंड, 100 पाउंड जितना भी अल्लाह मियां ने आपको तौफीक दी है वो आप डोनेट करें प्लीज। क्योंकि हम दी इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें ये फैसला करना है कि क्या हम गुलामों की तरह रहना चाहते हैं या हम एक आजाद कौम की हैसियत से रहना चाहते हैं। क्योंकि अगर ये इसी तरह होता रहा जो आजकल हो रहा है तो एक तो ओवरसीज पाकिस्तानी अपनी फैमिलीज के साथ पाकिस्तान विजिट नहीं कर सकेंगे। ये मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूँ जो इनके इक़दाम हो रहे हैं हम लोगों के खिलाफ, और जो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे जानने वाले हैं, हमारे दोस्त हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं, उनकी भी जो जिंदगी है वो खतरे से खाली नहीं होगी। तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि आप लोग सामने आए, डोनेट करें ताकि हम जो ये नेक काम है, मैं तो इसको बड़ा नेक काम। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपकी फैमिली ने ये चीज़ इंट्रोड्यूस कराई, डॉक्टर खान साहब ने इंट्रोड्यूस कराया कि पब्लिक फंडिंग के ज़रिए, पब्लिक डोनेशन के ज़रिए एशिया के सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल जो है वो उन्होंने खड़ा कर दिया और अब उसकी ब्रांचेस चल रही हैं, वो भी पब्लिक फंडिंग के ज़रिए चल रही हैं। पब्लिक फंडिंग, डोनर फंडिंग के ज़रिए पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर पार्टी खड़ी कर दी। इससे पहले तो टोटल बदमाशों की फंडिंग या मेरान बंक जैसे जो है एस्टेब्लिशमेंट की फंडिंग से जो काम चलता था, खान साहब ने उसको शफाफ करके आवाम की फंडिंग के साथ कर दिया। और खान साहब लोगों को मशवरा भी यही देते हैं, मुझे भी लोग मशवरा देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है पुराने जो लोग हरामखोर बैठे हुए हैं, हरामखोरों को तकलीफ बहुत है, वो कहते हैं वो यार ये तो मांगते हैं पैसे, देखो ये लोग जो है इंटरनेशनल। खान साहब को भी ताने इस तरह के मिलते ही हैं आपको। तो ये डिस्कशन आपकी खान साहब से इस सिलसिले में कभी होती तो है आपकी डिस्कशन, लेकिन इस बारे में खान साहब का क्या नुक्ता नजर है, पहले ये बताइएगा। किस बारे में आदर? ये फंडिंग के सिलसिले में सर, फंडिंग रेज करने के लिए, ये जो हम पब्लिक से फंड रेज करते हैं, ये इस सिलसिले के अंदर सर। हाँ नहीं जी, आप देखें जो फंडिंग है इस किस्म की वो पाकिस्तान में एक्चुअली खान साहब ने शुरू की थी इस पैमाने पे। उससे पहले जो अल्लाह बख्शे ईदी साहब थे वो करते रहे, लेकिन खान साहब ने तो उसको बिल्कुल एक जो उसकी इंतहा है वहां तक पहुंचा दिया था। और मजे की बात यह है कि आज तक किसी गोरे ने, अमेरिकन गोरे ने या ब्रिटिश गोरे ने उन्हें पैसे नहीं दिए, ना उन्होंने उनसे मांगे। हमेशा उन्होंने जो पाकिस्तानी थे पाकिस्तान में और बाहर के मुल्कों में उनसे पैसे रेज किए और हमेशा नेक काम के लिए किया। तो इसमें कोई शर्म की तो बात ही कोई नहीं है जी। आप देखें जो उन्होंने शौकत खानम खड़ा कर दिया, जो दुनिया में सिर्फ अपनी किस्म का पहला प्राइवेट हॉस्पिटल है जहां पे 84% लोगों को फ्री कैंसर की ट्रीटमेंट दी जाती। मैं कैंसर सर्जन हूं, मुझे पता है कि कितनी महंगी ट्रीटमेंट है इसकी, लेकिन बिकॉज ऑफ खान साहब की वजह से और उन नेक लोगों की वजह से जिन्होंने इतनी ज्यादा डोनेशंस दी हैं उनको कि वो हॉस्पिटल चल रहे हैं। उसके अलावा आप नमल को देख लें। मैं आपको छोटा सा वाकया सुनाऊं कि ये 220 में 2020 में फरवरी में नमल की ग्रेजुएशन परेड थी, तो खान साहब वहां पे आए। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, मैं यहाँ से गया हुआ था, मैं अपने बड़े भाई के साथ खड़ा था उधर जब उन्होंने खिताब किया। तो वहां पे जो लड़के ने जिसने सबसे ज्यादा अवार्ड लिए, बेस्ट एवर स्टूडेंट था, वो मैं उससे मिलने गया तो उसके साथ एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था। तो मुझे वो पहचान के कहता, डॉक्टर उस्मान, मैं सो एंड सो है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, फिर मैंने उसको पहचान लिया। आप देखें वो
خان صاحب کے والد صاحب کے گھر چوکیدار تھا ہوا. ساری زندگی انہوں نے خدمت کی. اب دیکھیں اس کا جو گرینڈ سن ہے, بیکاز آف